Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you'll find work solutions to past papers by experienced teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other fellow Cambridge learners. Thank you. Okay, the paper that we're doing today is P4 variant 43. ये हमारा obviously theory का paper है and we're gonna start off from October-November 2020. So let's start. Question number 1. Figure 1.1 shows a trolley traveling down a ramp. The trolley has a piece of paper tape attached to it. The tape passes through a machine which makes a dot on the tape every 0.02 seconds. Figure 1.2 shows a section of the tape. State how the dots on the tape show that the trolley was moving with constant speed. Okay. Let's just start off with the writing. Okay. First, हमारे पास trolley है, ठीक है? And it's attached to this tape over here. और it's attached to a machine जिसमें हर 0.02 seconds पे हमारी tape पे dot बन रहा है. And this is the actual paper tape over here. State how the dots on the tape show that the trolley was moving with a constant speed. अब हर 0.02 सेकेंड्स पे हमारे पास डॉट फॉर्म हो रहा है, हाँ कि नहीं? तो हमें नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पर डॉट्स हैं इनकी डिस्टेंस एग्जैक्ट सेम है. सब डॉट्स की डिस्टेंस सेम है, मतलब हर 0.02 सेकेंड्स में सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है. तो कांस्टेंट स्पीड हम कैसे प्रूव करते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. So speed is equals to distance upon time. तो अगर same distance सबकी upon same time तो मतलब speed भी सबकी same है, constant या same speed सबकी, ठीक है? So that actually proves it. How are we going to put that in words? We'll say same distance traveled in same distance traveled in every 0.02 seconds. 0.02 seconds, ठीक है? When the trolley reaches a point P, यहाँ पर मैं दिखाया हुआ है point P कहाँ पर है? It's here. The ramp is tilted so that the angle x is greater. मतलब कि हमने ramp को समझे इस तरह place कर दिया और यहाँ हमारी trolley आ गई and x obviously increase हो गया, so it will be more than x जो हमारा नया angle आएगा. When the trolley describe and explain the change in motion of the trolley. Obviously, अगर हम उसको tilt करेंगे तो एक resultant force पड़ेगी नीचे की तरफ further, जिसकी वजह से उसकी speed increase होगी. Speed increase मतलब acceleration होगी, ठीक है? तो description क्या होगा इसकी motion का? Speed will increase and trolley will accelerate. इसका रीज़न क्या होगा? एक्सप्लेनेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स. हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जहाँ पर भी एक्सेलरेशन है इट्स बिकॉज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, ठीक है? Another trolley is released from the top of the ramp. Figure 1.3 shows the speed time graph for this trolley. ठीक है, हमारे पास स्पीड है और टाइम का ग्राफ दिखाया हुआ है. यहाँ पर स्पीड हमें नज़र आ रहा है कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करिए, मतलब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है. यहाँ पर कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रॉली इन द फर्स्ट 0.5 सेकेंड्स. डिस्टेंस ट्रैवल्ड यहाँ तक 0.5 सेकेंड्स. अब हमें पता है, देखो ग्रेडियंट इज y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, मतलब यहाँ पर है स्पीड अपॉन टाइम. देयरफॉर gradient is acceleration, ठीक है? area under the graph is equals to y axis multiplied by x axis. तो यहाँ पर हुआ speed into time, therefore area is equals to distance, ठीक है? तो area ये हमारा basically पूरा ये जो area है यहाँ पर ये हमारी distance. अभी area कैसे निकालेंगे? It's a triangle, so half into base into height 0.5 मल्टीप्लाइड बाय बेस हमारा यहाँ पर है 0.5 और हाइट हमारी क्या है यहाँ पर आ रही है बेसिकली.
तो सिंस दिस इज 0.5 यहाँ 0.6 0.7 0.8 0.7 और 0.8 के बीच में, सो इट विल बी 0.75. तो आंसर हमारा आएगा अराउंड, अगर हम राउंड ऑफ कर लें 0.185 आ रहा है ना, तो अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो 0.19 मीटर्स, क्योंकि ऊपर यूजुअली हमें 1 या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं, तो हम यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखेंगे. ठीक है. Figure 1.4 shows a metal ball at rest in a tube of liquid. The ball is released and reaches terminal velocity at point x. Terminal velocity का मतलब क्या होता है? Constant. Explain the motion of the ball as it falls from rest until it reaches point x. Use the ideas of force and acceleration in your answer. मतलब कि जब वो रिलीज किया गया है up until it reaches terminal velocity, इसके साथ हुआ क्या? सबसे पहले तो हमें पता है कि due to gravity it is going to accelerate first. ये तो हमेशा होता है. तो हम लिखते हैं initially velocity increases या तो फिर ball accelerates due to resultant force. Due to resultant force. ठीक है, हमने force का बता दिया, acceleration का भी बता दिया, हम भी लिखेंगे. फिर ये अब क्योंकि acceleration हो रही है तो वहाँ से ये terminal velocity में किस तरीके से गया, तो हम ये बताएंगे कि as velocity increases, ठीक है, increases, इसकी वजह से क्या होगा? resistance. ये किसकी रेजिस्टेंस की बात हो रही है? लिक्विड की. इंक्रीजेस बिकॉज स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसकी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली अपवर्ड होगी, और स्पीड इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड्स, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस एट वन पॉइंट, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स जो हमारी ऑब्वियसली ग्रेविटी है इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स. दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी. जब कांस्टेंट स्पीड पे इट ट्रेवल्स, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. Now question 1. Next, question 2. Figure 2.1 shows a cliff edge with water below it. ठीक है, यहाँ पर बॉल है and 115 meters पे नीचे पानी. A ball falls over the edge of the cliff. The mass of the ball is 160 grams. The height of the cliff is 115 meters. Calculate the vertical speed of the ball as it hits the water. अब vertical speed हम किस तरीके से निकालेंगे? Speed हम निकाल सकेंगे through, अब हमें speed निकालने का ना टाइम दिया हुआ है ना डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, तो हम और किस तरीके से निकाल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ऑब्वियसली ये नीचे गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं? mgh इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. mgh मास में पता है कि 160 ग्राम्स है, तो उसको हम kg में करेंगे तो कितना होगा? 0.16 kg into g हमारा 10 है and height is 115 meters is equals to change in kinetic energy. अगर हम इसकी वैल्यू निकालें यहाँ पर, let me just take it out, 0.16 multiplied by 10 multiplied by 115, आंसर आ रहा है 184 joules. ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 184 joules is equals to change in kinetic energy. कितना हुआ? हाफ इंटू मास कितना है हमारे पास? 0.16 हाफ mv स्क्वायर. तो अगर हम 0.5 को मल्टीप्लाई करें 0.16 से, या आंसर आ रहा है 0.08, तो हम करेंगे 1.84, ठीक है, डिवाइडेड बाय 184 divided by 0.08. 184 divided by 0.08. That's equals to v square. तो आंसर यहाँ पर आ रहा है
23,000। और अगर हम दोनों पे फिर रूट लगा दें, ठीक है, रूट लगाएं 23,000 पे, मैं आपको बताती हूँ, दोनों तरफ हमारा रूट लग गया, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर है तो उसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा। 23,000 रूट लग रहा है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 47.9। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारा बन रहा है 48 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द वर्टिकल मोमेंटम ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द वाटर। मोमेंटम किस तरीके से निकालते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला ये, मास है हमारा 0.16 एंड वेलोसिटी इज 48, हाँ कि नहीं? तो अगर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास आ रहा है 7.7 kg। ऑब्वियसली मास हमारा है kg एंड मीटर अपॉन सेकेंड। ये हमारा मास का है और ये वेलोसिटी का है। ठीक है, we're done with that. Question number 3. Speed is a scalar quantity. Let me just, Speed is a scalar quantity. Scalar मतलब कि उसकी direction matter नहीं करती speed पे। चाहे direction change हो, speed will not be affected. But अगर direction change हो, velocity will be affected because velocity is a vector quantity. State one other scalar quantity. कुछ भी हो सकता है, time, mass। आप ये सोचें कि अगर डायरेक्शन चेंज हो तो ये चीज़ चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टेट वन अदर वेक्टर क्वांटिटी, एनी अदर वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल है। Figure 3.1 shows a model car traveling at a constant speed on a flat circular track. अच्छा, हमारे पास एक कार है, कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है सर्कुलर ट्रैक पे। हमें पता है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन इसकी वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, बिकॉज वेलोसिटी इज व्हाट? इट्स अ वेक्टर फोर्स। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। द स्पीड ऑफ द कार इज 0.3 meters per second in one complete revolution around the track. The car travels 3.9 meters. Calculate the time taken for the car. अब हमें टाइम निकालना है। हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास वेलोसिटी है ना, हमारे पास डिस्टेंस है, हाँ कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 3.9 अपॉन 0.3। तो आंसर हमारे पास टाइम आ रहा है 13 seconds। ठीक है। On figure 3.1, draw and label with the letter F and arrow showing the resultant force acting on the car. हमें पता है कि जब कोई चीज़ circular motion में जा रही होती है, it's because of one resultant force, which is what? Centripetal force, which is towards the center of the circle. अगर किसी ने बोला है कि centrifugal force does not exist. ठीक है, it's a theoretical force and वो outwards होती है लेकिन it doesn't exist. हमें पता है कि actual force ये है, it's a centripetal force. The speed of the car increases and at point P the car does not stay in the track. Suggest in terms of force acting on the car, why does the car not stay in the track? Obviously, according to centripetal force, अगर हमारा inward force जा रही है, ठीक है, centripetal force, अगर आप velocity change कर रहे हो, तो आपकी जो इनवर्ट फोर्स आ रही है वो इनसफिशिएंट होगी एट हायर स्पीड। अगर इनवर्ट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इनसफिशिएंट है या कम पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो ट्रैक के बाहर चले जाएगा। ठीक है, ओके। अगर हम फॉर्मूला को देखें, जो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास mv² अपॉन r। यह होता है हमारे पास mrw²। ठीक है, हम v वाले ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है। अब अगर ऑब्वियसली ये हमारी फोर्स यहाँ पर है, ठीक है, इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि हमें ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उस वेलोसिटी को मैच करने के लिए। ठीक है, अब जो गाड़ी एक सर्कुलर मोशन में जा रही है, जो ये इनवर्ट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज़ फ्रिक्शन की वजह से इनवर्ट फोर्स पड़ रही है एंड इट्स मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। अब फ्रिक्शन हमारा मास पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। अब क्योंकि मास गाड़ी का चेंज नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन तो कांस्टेंट रहेगा।
अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो वो चाहेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी इंक्रीज़ हो, लेकिन वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें यहाँ पर कम पड़ रही है. डू यू अंडरस्टैंड? सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट इनफ. इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ये आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है. और ये मैंने एक मिनट, ये इस तरह आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएगा बिकॉज इट्स गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, इट्स गोइंग फॉरवर्ड, तो इसके पास यू नो इट वोंट गो अपने डायरेक्शन में. ये आउट ऑफ डायरेक्शन तभी जाएगा, ये आउट चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फोर्स चाहिए, इतनी फोर्स नहीं है कि वो उसको कम्प्लीटली अंदर रख सके. तो ये हमारे पास suggest in terms of the force acting on the car, why does the car not stay on the track at point P. हम इस पे लिखेंगे क्या कहते हैं, in resultant inwards force, which is our centripetal force, obviously insufficient. ठीक है, मतलब हमें कम पड़ रही है. On figure 3.2, draw and label an arrow with the letter S to show the direction of the motion of the car as it leaves the track at point P. ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हम इसको बस S पे लेबल कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारे पास question 3. Question 4. In figure 4.1, the circles represent molecules in different matter of state. Identify the states A, B, and C. This is obviously very simple. हमें पता है कि A हमारे पास क्या होगा, A लिक्विड होगा. क्यों? लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, लेकिन इतना क्लोज नहीं जितना सॉलिड के होते हैं. सॉलिड के बहुत ही प्रॉपरली अरेंज होते हैं. दिस इज़ गोना बी लिक्विड एंड दिस इज़ गोना बी गैस. ठीक है, तो A इज़ लिक्विड, B सॉलिड, C इज़ गैस. ऑब्वियसली आप फुल लिखेंगे, मैंने ऐसे ही लिख दिया. Explain in terms of the forces between molecules why gases expand more than liquids when they have the same rise in temperature, assuming that the pressure remains constant. मतलब कि अगर आप पानी को समझे 10 जूल्स हीट दें और वाटर वेपर को 10 जूल्स हीट दें, वाटर वेपर में वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा देन पानी. वाई? ऑब्वियसली क्योंकि पानी में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं. इट्स अ लिक्विड, इट्स गोना हैव मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस देन अ गैस, राइट? तो हम बोलेंगे हम लिखेंगे कि distance between gas molecules is greater. ठीक है, और हम ये बोलेंगे कि attractive forces and there are less attractive forces to overcome than liquids. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. Figure 4.2 shows a cylinder and a piston. The volume of the gas in the cylinder is 3,400 centimeter cube. The pressure of the gas in cylinder is 0.9 into 10 to the power 5 pascals. ये भी सिलेंडर के अंदर के गैस की वॉल्यूम दी हुई है और इसका प्रेशर भी दिया हुआ है. अब देखते हैं क्या बोला हुआ है हमें. The piston is moved to the left and in a new fixed position. Obviously हम इसको लेफ्ट पे मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम में डिक्रीज होगा और प्रेशर में इंक्रीज होगा, बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा. हाँ कि नहीं? The pressure of the gas in the cylinder increases. Obviously 0.9 था हमारे पास, I think उससे 2.5 into 10 to the power 5 बन गया. Assuming that the temperature of the gas does not change. Calculate the new volume of the gas. अब हम नई वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे गैस की? आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P1 V1 is equals to P2 V2. हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. पहले में प्रेशर था 0.9 into 10 to the power 5 मल्टीप्लाई पर वॉल्यूम क्या आती है हमारी यहाँ पर 3,400 सेंटीमीटर क्यूब है ना. अब अगर आप चलो सेंटीमीटर क्यूब में कर लेते हैं, बहुत लंबा नहीं करते. 3,400 सेंटीमीटर क्यूब
इज इक्वल्स टू नया प्रेशर क्या है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये हमारी नई वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम इसको ले जाकर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इन दोनों के नीचे, एंड हमारी वॉल्यूम यहाँ पर आएगी 1200 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी वैल्यू भी मीटर क्यूब में लिखनी पड़ेगी, बट आई प्रेफर सेंटीमीटर में ही लिख दें, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। The gas in the cylinder is now heated. The piston remains in the fixed position as in C1. State and explain in terms of molecules any change in the pressure of the gas. Statement: pressure obviously increase हो जाएगा क्योंकि temperature increase हुआ है, तो molecules को ज़्यादा energy मिलेगी and they'll collide faster and more frequently. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, pressure increase हो जाएगा। प्रेशर क्यों लग रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो वॉल है ना सिलेंडर की उसको हिट कर रहे हैं, उससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो ज़्यादा उनमें टेम्परेचर आएगा, वो ज़्यादा जल्दी हिट करेंगे या ज़्यादा टाइम्स हिट करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स move and collide faster, ठीक है। और या तो फिर you can say they collide more frequently। और शायद आप ये लिख सकते हैं कि बिकॉज उनका मोमेंटम चेंज हुआ है, ऑब्वियसली मास इनटू वेलोसिटी उनका मोमेंटम है ना, अब टेम्परेचर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, आप ये सब भी लिख सकते हैं। Figure 5.1 shows two metal plates A and B with a radiator heat placed midway between them. Okay, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक शाइनी है एक डल ब्लैक प्लेट है, और उनके बीच में एक हीटर लिखा है बेसिकली, ठीक है। और वैक्स से इनके ऊपर कॉर्क चिपका हुआ है। Metal plate A is shiny, metal plate B is a dull black. A piece of cork is attached to each plate using wax. The wax is a solid at room temperature and has a melting point of 27 degrees Celsius. State and explain what happens to the pieces of cork a few minutes after the heater is switched on. Obviously heater switch on होगा तो दोनों तरफ heat पड़ेगी। अब जो ज़्यादा जल्दी heat absorb करेगा उसका wax सबसे पहले melt होगा और cork क्या होगा, cork गिर जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि हुआ क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि cork of the black plate falls off first, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं cork on black plate falls off first, ठीक है। क्यों, किसका क्यों, because black surfaces are better heat absorbers than shiny surfaces, ठीक है, यह लिख दिया। और इसके अलावा हम ये भी लिख देते हैं कि हम ये भी बोल सकते हैं कि शाइनी सर्फेसेस आर बेटर रिफ्लेक्टर्स देन ब्लैक सर्फेसेस, ये भी लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं शाइनी सर्फेसेस, वो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट कर रही है हीट को और ब्लैक सर्फेस अब्जॉर्ब कर रही है। शाइनी सर्फेसेस आर बेटर हीट रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। एंड हम ऑब्वियसली हमें पता है कि जो हमने ऊपर लिखा था उसी को हम बोल देते हैं वैक्स के, उसमें वैक्स की बात की जाएगी अब यहाँ पर। Wax melts on black plate first, ठीक है। Give the name of the method of transfer of thermal energy in solid metals. Obviously जब हमारे पास solid की बात आ रही होती है
तो कंडक्शन होती है। कन्वेक्शन होती है जब लिक्विड्स और गैस की बात हो रही थी। रेडिएशन तब होती है जब बीच में कोई मीडियम ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द सन टू द अर्थ कोई मीडियम नहीं है बीच में, इट्स जस्ट स्पेस, तो वहाँ पर रेडिएशन के थ्रू आ रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्वियसली आंसर है कंडक्शन। ठीक है। नंबर 6, sound waves consist of compressions and rarefactions. Sound waves, compressions and rarefactions, क्योंकि it's a longitudinal wave. ठीक है। Explain in the terms compressions and rarefactions. Give your explanations in terms of the spacing of the molecules and the pressure for the sound waves. अब अगर longitudinal wave की बात की जाए, this is how its molecules look. पहले हमारे पास एक compression आता है, फिर एक rarefaction आता है, फिर एक और compression आता है, फिर rarefaction आता है, ऐसा, फिर एक compression आता है, फिर एक compression आता है यहाँ पर, फिर rarefaction आता है यहाँ पर। ठीक है। मैं आपको इसको यहाँ पर बीच में लाइंस बना देती हूँ ताकि मोर एविडेंट नज़र आए। अब कंप्रेशंस में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर, तो उसमें क्या होगा, हायर प्रेशर होगा, हायर प्रेशर, एंड इसमें लोअर प्रेशर, एंड इसमें हायर क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड इसमें क्या होगा, लोअर क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ आ गई? तो अब दोनों की मैं बात करनी है इन रिलेशन टू इन टर्म्स ऑफ स्पेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रेशर। तो अब कंप्रेशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्लोजर टुगेदर देन, हम लिखते हैं देन नॉर्मल एंड हायर, ये एयर की बात कर रहा है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टुगेदर देन नॉर्मल एयर एंड हायर प्रेशर देन नॉर्मल। ठीक है। और नीचे हम लिख देते हैं रेयरफ्रैक्शन में ऑब्वियसली molecules further and lesser pressure than normal. ठीक है। A musical instrument emits a sound with a frequency of 4.4 kilohertz. The speed of sound in air is 340 meters per second. अब हमें वेवलेंथ ढूंढना है। हमें पता है हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए हम करेंगे v अपॉन एफ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास 340, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4400, क्योंकि ऑब्वियसली इसको हमको यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ रहा है 0.077 मीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट, the frequency of the sound emitted by the instrument is changed to 5.1 kilohertz. मतलब हमने frequency को increase कर दिया, increase in frequency, and the amplitude of the sound is increased. Without calculation, state what happens to the speed of the sound. अब हमें पता है कि sound कौन सी wave है, it's a medium wave. साउंड की स्पीड तभी चेंज होती है जब हम मीडियम चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हम गैस से लिक्विड कर दें तो साउंड की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, लिक्विड से सॉलिड कर दें तो साउंड की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। सिर्फ मीडियम चेंज करने से साउंड की स्पीड चेंज होती है। तो स्पीड यहाँ पर सेम ही रहेगी क्योंकि हम मीडियम चेंज नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे स्पीड, ठीक है, स्टेज द सेम। ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। अब ऑब्वियसली हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर स्पीड यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करिए तो लैम्डा को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? अगर क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इन दोनों को अपने आप में ही कांस्टेंट प्रोड्यूस करनी है वेलोसिटी। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है तो लैम्डा को डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। सो द वेवलेंथ, व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ? द वेवलेंथ डिक्रीजेस।
don't know this question. Question number 7. State 2 uses for infrared radiation. ठीक है, infrared हमें पता है कि हमारे remote controls में use होती है, हमारे sensors में use होती है, infrared sensors होते हैं, infrared alarms होते हैं, electrical applications में use होती है. ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी लिख देते हैं. I'll just write 2 here. I'll write remote controls and sensors, alarms. ठीक है. X-rays are used in the hospitals to help treat patients. Suggest and explain 3 precautions for the safe use of X-rays. X-rays से हम safe कैसे करते हैं? यूजुअली आपको पता है कि डॉक्टर हमें बोलते हैं कि X-rays dangerous नहीं होती है वो, बट वो X-ray की मशीन ऑन करके फ़ौरन भाग जाते हैं. Because X-rays are obviously वो they're dangerous. ठीक है, they can cause आपकी बॉडी में वो आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं बेसिकली. ठीक है, तो हम किस तरीके से उससे प्रोटेक्शन पाते हैं? हम देयर इज़ अ शील्ड होता है, ऑपरेटर अपने आप को शील्ड करता है. ठीक है, रूम से बाहर जाके, सो दैट इट डजंट ऑब्वियसली और उनको इफेक्ट ना हो. तो हम लिखते हैं कि हम लिखते हैं ऑपरेटर बिहाइंड स्क्रीन, या तो फिर आउट ऑफ रूम, या तो ये भी कहते हैं उसको लेड एप्रन बना दें ताकि उसको इफेक्ट ना करे. ठीक है, हम पेशेंट को किस तरीके से हेल्प करेंगे? हम ये बोल सकते हैं शील्डिंग पार्ट्स ऑफ पेशेंट टू नॉट बी एग्जामिन्ड. जिस एरिया का हम एग्जामिन नहीं कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको शील्ड कर दें, उसको हटा दें. ठीक है, ताकि उस पर इफ़ेक्ट ना करें. हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी रिड्यूस की जाए. ठीक है, रिड्यूस इंटेंसिटी, या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं लिमिट एक्सपोजर, मतलब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लिमिट स्ट्रेंथ, कुछ भी आपका जो मर्जी है लिख सकते हैं. लिमिट द डोज. ठीक है, स्टेट द स्पीड इन अ वैक्यूम ऑफ व्हाट रेज. हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं एंड हमारे पास एक्स रेज हैं. अब ऑब्वियसली देयर बोथ व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, विच इज़ 3 × 10⁸ meters per second, और ये दोनों की यही होगी बिकॉज दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. स्टेट अ पॉसिबल फ्रीक्वेंसी फॉर एन अल्ट्रासाउंड वेव. फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि ये हमारे टेक्स्ट बुक से आपको मिलेंगी. अब अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होगी मोर देन 20,000. क्यों मोर देन 20,000 हर्ट्ज? हमें पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. यू नो, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज प्रेग्नेंट व्हाटसएवर, यू डोंट हियर इट, राइट, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली मोर देन 20,000. सॉरी, हम कहाँ से कहाँ हम 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज डन. क्वेश्चन नंबर 8. Figure 8.1 shows an electrical circuit. The resistor has a resistance of 4 ohms. हम यहाँ लिख देते हैं 4 ohms. It always helps जब मैं इस पर लिख देती हूँ. I feel like it helps me imagine better, right? The reading on the voltmeter is 3 volts. तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 volt. State the current in the resistor. अब current कैसे निकालेंगे? V is equals to IR. तो I is equals to V upon R. तो हम क्या करेंगे? 3/4. हमारा आंसर आ रहा है 0.75 amperes. Figure 8.2 shows the same circuit with one component reversed. अब क्या होगा? करंट पास करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस्ड, यहाँ से वो थ्रू ही नहीं जा सकता. तो अब रीडिंग क्या होगी वोल्ट मीटर पे? वोल्ट मीटर पे रीडिंग क्या होगी? 0 volts या नथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली करंट मतलब सर्किट कंडक्ट ही नहीं हो रहा. ठीक है, हम बोलेंगे 0 volts. एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट इज डायोड इज रिवर्स बायस्ड.
या आप लिख दें डायोड doesn't pass current in reverse direction. ठीक है. Figure 8.3 shows a symbol for a logic gate. The truth table for the logic gate. अब ये हमारे पास कौन सा लॉजिक गेट है? ये हमारे पास एक एंड गेट है. स्टेट द नेम ऑफ दिस लॉजिक टेबल. ये हमारे पास एक एंड गेट है. ठीक है. अब हमें पता है कि एंड गेट का हमारे पास ये ऑब्वियसली हमें पता है, बट उन्होंने हमें दिया है 0 0 में हमें आउटपुट मिलेगा 0, 0 1 में आउटपुट 0 0, दोनों में 1 1 में हमें मिलेगा 1. A student designs the circuit shown in figure 8.4. अभी हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास नोर है. ठीक है. ये हमारे पास नोर लॉजिक गेट्स हैं. अब अगर हमारे पास और की बात हो रही हो, ठीक है, तो 0 0 में हमें मिलता है 0, 0 1 में हमें मिलता है 1, 1 1 में हमें मिलता है 1. अगर हम नॉर की बात कर रहे हैं तो हमें 0 0 में मिलेगा इसको ऑपोजिट 1, 0 1 में मिलेगा 0 एंड 1 1 में मिलेगा 0. ठीक है. अभी हमें ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना है. अब दोनों का, ठीक है, इसका जो ऊपर वाला, मैं इसको कलर कोड कर देती हूँ. जो इसका ऊपर वाला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, वही इसका नीचे वाला इनपुट है. दोनों का इनपुट्स एग्जैक्ट सेम है, दोनों के इनपुट्स सेम है, तो दोनों के आउटपुट्स भी सेम आने चाहिए फिर इस हिसाब से. ठीक है. और ये मेरे पास सी यहाँ जा रहा है और यहाँ पर मेरे पास टी है. ठीक है. तो अगर ए और बी 0 0 हो, दोनों में 0 है ऑब्वियसली, तो सी हमारे पास क्या होगा? सी हमारे पास होगा यहाँ पर, इट्स एन और टेबल, सी होगा हमारे पास 1. ठीक है. 0 1 हमारे पास होगा 0, वापस से 0 एंड दिस विल ऑल्सो बी 0. डी में क्या होगा? एग्जैक्ट वही चीज़ होगी क्योंकि दोनों को सेम इनपुट मिल रहा है. अब हम ई की बात करते हैं. अगर हमारे पास 1 1 हो तो हमारे पास आउटपुट होगा 0. ठीक है. 0 0 तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1 1 1. समझ आई? तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? A single logic gate can be used to produce output E in figure 8.4 with the inputs A and B. मतलब अगर हमारे इनपुट्स, ठीक है, A and B है, ये हमारा इनपुट्स है, तो ये हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. ये कौन सा लॉजिक गेट है? अब हमारे पास 0 0 में 0 प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है? ये हमारे पास एंड हो सकता है, या तो ये हमारे पास और हो सकता है. ठीक है. एंड और तो हो नहीं सकता. 0 1 में हमारे पास 1 प्रोड्यूस हो रहा है वापस से, या तो ये एंड है या और है. 0 1 में 0 1 में अगर हमारे पास 1 प्रोड्यूस हो रहा है तो ये डेफिनेटली और है, क्योंकि एंड में 0 1 में हमारे पास 0 प्रोड्यूस होता है. ठीक है. और इसमें भी प्रूव हो रहा है कि दिस इज एन और गेट. राइट, और गेट. एंड we're done with this question. Question number 9. Electrical power is produced in a power station by alternating current generator. The output of the generator has a voltage of 22,000 volts. The electric power is transmitted at a voltage of 400,000 volts. Explain why the electrical power is transmitted at a voltage of 400,000 volts and not 22,000 volts. मतलब जब हम पावर प्रोड्यूस हो रही होती है, वो प्रोड्यूस होती है 22,000 वोल्ट्स की. ठीक है. मतलब आपके जो स्टेशन होते हैं पावर स्टेशन, लेकिन जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हम उसको 400,000 वोल्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं. क्यों? अगर हम, ठीक है, एक समझो पावर है हमारी, ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है P = IV. ठीक है. पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है P = IV. तो अगर हमारी पावर हम चाह रहे हैं कि कांस्टेंट रहे और हम अपनी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज़ इन करंट. क्यों? हम इंटेंशनली अपने करंट को डिक्रीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करंट जितना कम होगा उतना कम हीटिंग इफ़ेक्ट होगा, उतना कम हीट लॉस होगा और उतना कम पावर लॉस होगा.
तो हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं बेसिकली ताकि पावर लॉस कम हो, ठीक है। तो हम लिखते हैं हाई वोल्टेज results in less current for the same power, ठीक है। हम लिखेंगे heat loss depends on current, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि therefore हम लिखते हैं therefore less current means less heat loss, therefore less power loss in electrical lines. आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि we can use thinner wires। इसका ये thinner wires में usually higher resistance होती है और उसकी वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादा थर्मल लॉस होता है, लेकिन क्योंकि हमारा करंट इतना कम होगा कि उसमें बहुत मुश्किल से कोई रेजिस्टेंस और मुश्किल से कोई थर्मल लॉस हो गया, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट आई एम नॉट राइटिंग इट आउट। अ कंप्यूटर कंटेन्स अ ट्रांसफार्मर, द इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पर साइड पे लिख देते हैं। इनपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज प्राइमरी इज इक्वल्स टू 240 volts. The output voltage from the transformer is V secondary is 20 volts. The output current is 2.3 amperes. The efficiency of the transformer is 90%. Calculate the input current of the transformer. ठीक है, अब हमारे पास efficiency हमें पता है, उससे कोई इतना मतलब आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पहले आप efficiency करें, ठीक है। हमारी efficiency है 90%. 90 is equals to output power upon input power times 100, ठीक है। ये मैं यूजुअली नहीं प्रेफर करूँगी, बट हमें क्योंकि एफिशिएंसी का बताया हुआ है मतलब हमें उसको यूज़ करना है, ठीक है। वरना हम कोई और तरीका लेते हैं। पहले आप ये सुन लें, ठीक है। आउटपुट पावर हमें पता है कि हमें दोनों दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज भी दिया हुआ है और पता है हमें कि पावर का फॉर्मूला होता है P = IV, है ना। तो आउटपुट पावर हमारे पास होगी 20 × 2.3 और इनपुट पावर हमारे पास है X, विच इज़ हमारे पास, बल्कि मैं X नहीं लिखती, मैं प्राइमरी या इनपुट करंट लिख रही हूँ। इनपुट करंट विच प्राइमरी करंट मल्टीप्लाइड बाय 240 × 100, ये 90 यहाँ पर है। इससे आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है। आपको IP इससे मिल रहा है। लेकिन अगर एक और तरीका है हमारे पास, दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है कि पावर ऑफ प्राइमरी एंड पावर ऑफ सेकेंडरी कांस्टेंट रहेगी, मतलब हम चाह रहे हैं कि वो सेम रहे। तो IPVP is equals to ISVS। तो इस तरीके से हमारा IP निकल जाएगा 240 ज़्यादा आसानी से, ठीक है। 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 20, बस हम 240 को यहाँ से डिवाइड कर लेंगे और इससे हमारा IP निकल जाएगा। दिस इज़ ऑब्वियसली मच मोर ईजियर, बट क्योंकि हमें एफिशिएंसी दी हुई है सो आई प्रेफर कि हम एफिशिएंसी वाला ये वाला यूज़ करें, ठीक है। और आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर, क्या कर रही हूँ मैं, let's just ignore that happened, 0.21 amperes ये हमारा करंट, ठीक है। नेक्स्ट फिगर 10.1 shows a relay. I don't like relays, I don't know why, जो हमेशा बुरे लगते हैं। खैर, the switch in current A, sorry पहले तो हम देख लेते हैं हमारे पास है क्या। हमारे पास सर्किट B हमारा है ऊपर, ठीक है, एंड सर्किट A है। पिवट दिया हुआ है जहाँ पर कांटेक्ट होगा, दोनों तरफ से ऊपर जाएगा, यहाँ कांटेक्ट होगा। तो सर्किट B हमारे पास ऑब्वियसली इसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से दोनों अटैच्ड हैं। द स्विच इन सर्किट A इज़ क्लोज्ड. डिस्क्राइब हाउ दिस ऑपरेट्स द मोटर इन सर्किट B. अब अगर सर्किट A हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ये स्विच क्लोज हो, तो जो हमारे पास सोलेनॉइड यहाँ पर है इसमें करंट आ जाएगा, ये जो सोलेनॉइड है, तो क्या बन जाएगा हमारा, इसके अंदर जो आयरन कोर है वो मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं, पहले तो हम इस पे लिखते हैं। क्लोजिंग स्विच की वजह से क्या होगा, हम लिखेंगे आयरन कोर या हमारा सोलेनॉइड बिकम्स
क्या हो रहा है, अ मैग्नेट। अब अगर वो मैग्नेट बनेगा तो वो पिवट को, जो हमारा सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम लिखेंगे सोलेनॉइड attracts iron armature. You have to write the word attracts because it's a magnet, it's going to attract it because iron को attract करेगा magnet obviously. इससे ये आगे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, ये जो हमारा iron को। फिर क्या होगा, pivot moves and हम लिखेंगे नहीं, armature moves, हम लिखेंगे armature moves because of the pivot, ठीक है, armature पिवट करेगा, हम ये लिख देते हैं, आर्मेचर पिवट करता है, पिवट्स, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट्स या टचेस सर्किट बी एंड there's a current in circuit B. सर्किट B में हमारे पास करंट आ जाएगा, ठीक है। The switch in circuit A is opened, मतलब स्विच को हम खोल देते हैं, वो वापस आर्मेचर अपनी जगह पर चला जाता है। The soft iron armature is replaced with the steel armature. Then the switch is closed. Explain what happens when the switch in circuit A is then opened. अब हमें पता है कि स्टील क्या होता है, स्टील हमारे पास परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमने समझे आयरन आर्मेचर यूज़ किया हुआ है, अगर हम स्विच ए खोलते, मैं इस पर जाती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आयरन आर्मेचर है, यहाँ पर कनेक्टेड है। अगर हमने स्विच ए खोल दिया तो ये वापस से अपनी जगह पे चल जाएगा, ये वापस से नीचे आ जाएगा एंड सर्किट बी में नो करंट इसमें रुक गया। बट अगर स्टील की बात की जाए, इट बिकम्स, अगर इसको हम मैग्नेट से कनेक्ट करें, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कराए, इट बिकम्स इनटू अ परमानेंट मैग्नेट। फिर क्या होगा, ये यहाँ पर चिपका रहेगा और यहाँ पर भी अटैच रहेगा और सर्किट बी में करंट फ्लो होता ही रहेगा। समझ आ रही है आपको? तो हम लिखेंगे, ठीक है, इसकी वजह से व्हेन स्विच इन सर्किट ए इज ओपन, उसमें क्या होगा, करंट इन सर्किट बी does not stop when switch A is opened, as steel, ठीक है, remains magnetized। सही है, ओके, ये हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। Let me just, yeah. Figure 11.1 shows the beam of alpha particles, beta particles and gamma rays placed between two metal plates. अब हमारे पास पॉजिटिव है और नेगेटिव है। हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, मैं इसको लाइटर कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, ये लाइट क्यों नहीं हो रहा, हो जाओ लाइट, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अच्छा मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसा हो गया लाइट, माशाल्लाह, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक बनती है, बिकॉज दैट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ स्मॉल पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ठीक है। अब the metal plates are parallel and there's a large potential difference between them. Plate P is positive and plate Q is negative. On figure 11.1, draw the paths of each of the radiations between the plates and after leaving the plates. ठीक है, तो label the paths alpha, beta and gamma. तो हम अल्फ़ा बीटा गैमा को डिफरेंटली लेबल कर लेते हैं। पहले तो हमारे पास अल्फ़ा की बात करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हम ये इस तरह अल्फ़ा कर लेते हैं। अब ये वापस हो ही नहीं रहा, अच्छा
है, सही है, ठीक है। इसको हम अल्फ़ा कहते हैं, बल्कि थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्शन, अल्फ़ा, ठीक है। बीटा क्या होता है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है एंड इट्स स्मॉलर इन मास, तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, ये बीटा। और गैमा, वो उस पर कोई चार्ज नहीं होती, तो वो ऐसे ही आगे कंटिन्यू करता है, इट डज नॉट गेट अट्रैक्ट टू एनीथिंग, ओके। ये हमारा हो गया। हमें ये भी दिखाना है कि बीटा अल्फ़ा से ज़्यादा डिफ्लेक्टेड है, हमें ये भी दिखाना है कि गैमा ऐसे ही बाहर निकल गया विदाउट टचिंग एनीथिंग। नेक्स्ट, state and explain one practical application of gamma rays. gamma rays में पता है कि मेडिकल में हमारे पास इक्विपमेंट की स्टेरिलाइजेशन के लिए होती है, रेडियोथेरेपी होती है, उससे आप मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं। आप इसको बेसिकली क्रैक्स मालूम करने के लिए भी करते हैं। अगर कोई क्रैक है उसके पीछे रख के एंड आप आगे गीगर काउंटर रखें तो आपको पता चलेगा कि ओके यहाँ पर हमारे पास रेडिएशन मिल रही है, तो यहाँ पर कोई क्रैक है या कोई लीक है या कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो सबसे सिंपल ये है कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, एंड इसका रीज़न क्या होता है कि इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, इट डिस्ट्रॉयज कैंसर cells, destroys microbes, etc etc, ठीक है। सो ये हमारे पास आई थिंक हो गया। हाँ, ये हमारे पास आज का पेपर कंप्लीट एंड वर डन विद 2020 के सारे वेरिएंट्स, अक्टूबर नवंबर के एंड मई जून के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम 2019 शुरू करेंगे। सो होपफुली आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।